Hello and welcome. We now have with us renowned astrologer Pandit Dr. Sanjeev Kumar Srivastav. Thank you so much for joining us, Dr. Srivastav. Thank First question is, what is astrology and Jyotish science? Is it a myth, superstition, or is it actual science? Very good question, Anisha ji. Jyotish is actually GPS of life events, in simple words. Because there are so many events in the life, from the birth to the death, from birth of a child, naming a child, then about the education, then about the career, then marriage. So many events are there in the life. And I would say the best tool to guide on various events of the life is Jyotish, and especially Nadi Jyotish. Okay. So, can you tell us what is Nadi astrology and how is it different from Vedic astrology? See, Nadi astrology, there are so many branches of Nadi astrology. There are so many branches in astrology as well. One is Nadi astrology, one is Vedic astrology, then Gemini. But Nadi astrology is something very unique. And there are two branches in Nadi astrology. One is Bhrigu Nadi and second is Agastha Nadi. You might have seen people taking thumb and then predicting about the future. So that is Rishi written on the palm leaf by the ancient rishis. And you can know about your past very well, very accurate. But about future, it is little difficult. It is like 50-60%, something like that. There comes the role of Nadi Nakshatra Jyotish, which is very unique and very powerful in terms of precision of time, precision of events. The accuracy, I have been teaching across the world and consulted over lakhs of charts. The precisions of Nadi astrology is more than 90-95%. Vedic astrology is another form of astrology by our rishis that is also very popular. But in Vedic astrology, the constraint is the precision of event is not that accurate. It goes to maybe 60-70% maximum. Even the best of the astrologer practicing from generations, 30-40 years or maybe generations, can't claim that his accuracy is more than 90% or more than 70%. Something like that. I've got from my friends only, who are astrologer and practicing in the field. So this astrology, Nadi Nakshatra astrology is very precise, very accurate, and it can act as a guiding tool. So all the forms of Jyotish is good. Vedic Jyotish is also good. There are a lot of knowledge, a lot of depth also there. But when it comes to precision of event, guiding when you get the job, whether business is good or not, when you travel, whether you will settle in abroad, when you get married, what is the career path you can choose. These are very, very highly accurate, 95-97% accurate in Nadi Nakshatra Jyotish. All right. So, most of the times when people actually take out their kundali is when they are looking to get married. Why does this happen, and what role does astrology have on marriage? Does it have any impact? Is in matchmaking process astrology important? Whether it's Nadi astrology or it's Vedic astrology, what do you view? Very nice question. The most complicated thing in the human life is relationship. Most complicated. More than 50-60% of the question in astrology comes from the relationship perspective. Either it is boyfriend, girlfriend, or it is husband, wife. So astrology plays a great role in matchmaking, as well as, counseling or guidance after marriage also. Fifth house and eighth house consist of relationship, affair, So where you are getting married, you are getting a love marriage or you are getting arranged marriage, that is also known from the, astrology. When you are getting a life partner in life, when you are getting married, also known very accurately. You can really predict the year, month and close to weeks in this form of Nadi astrology. And as far as matchmaking is concerned, I would say that, the matching, the traditional way of matching the gunas is not the right way of matching. 32 gunas, 28 gunas, you are good, you can go. That is absolutely not right. And I would say the astrologers have to educate themselves or learn about Nadi astrology also. Right? Because we see that even the 32 gunas, जो 32 गुना का जो इसका मिलता है, वो उनका भी डाइवोर्स हो जाता है, और जो
18 गुण 12 गुण 10 गुण मिलता है, उनका भी शादी बहुत अच्छा चलता है. So one has to be very accurate, at least see. And how you can see the energies of the planet in both the horoscope. Whether they are complementing each other or not, how much is the energy of 7th houses of spouse house, how much is the gain energy, the spouse energy is there, and how much is the separation energy is there. And then ego, conflict, whatever is there. So very precisely you know what are the difficult time, what are the easy time, and how they will go along with each other. So astrology plays this very important role in the marriage and the matchmaking also. So, we have guided thousands of people who were in the conflict, right? That they want to divorce and all those things. And with the, right guidance, their divorce has been saved, their life has been gone on the right track. All right. But some people are a little afraid of astrology also because वहाँ लिखा होता है कि ये दोष है आपके जन्म पत्र में, ये आपके काल सर्प दोष है या मांगलिक दोष है, तो उसी को सोच के उनको डर लगता है. हाउ क्रिटिकल आर दीस? हाँ, देखिए, दोषास में ऐसा है कि बहुत सारे दोष बताते हैं जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, और उनके लिए वो वेरियस पूजास बताते हैं कि आप यहाँ चले जाइए, आपको काल सर्प दोष है, आपको मांगलिक दोष है. पहली बात तो इन दोषों का ना इतना ज़्यादा रोल नहीं है लाइफ में. ठीक है, दोषास हैं, अगर कुछ भी हैं उनको अलग तरह से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पूजा करा दें, कुछ करा दें तो वो दोष खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं. ठीक है, दिस इज़ नॉट द राइट वे ऑफ सीइंग द थिंग्स. दूसरा क्या है, जैसे मांगलिक दोष है, 28 साल के बाद वैसे ही मांगलिक दोष नहीं लगता. ठीक है, और मैंने तो ये देखना है अपने अनुभव में कि जहाँ मांगलिक दोष बोलते हैं वहाँ मंगल बल्कि ज़्यादा अच्छा होता है. उसमें 2, 7, 11 सेकंड हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस की एनर्जी होती है, तो मंगल तो फेवरेबल होता है. तो ये बहुत ज़्यादा मिथ है कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही करनी चाहिए. नहीं, आपको सारे प्लैनेट देखने पड़ेंगे, सारे प्लैनेट्स की एनर्जी देखनी पड़ेगी, तब सिर्फ एक प्लैनेट आपकी लाइफ में कुछ हिला नहीं सकता है ज़्यादा. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स एंड एनर्जीज, हाउसेस एनर्जीज विच मेक्स द इवेंट ऑफ द लाइफ. तो देखिए, जैसे कि अब सिंपल एक लेमैन लैंग्वेज में मैं बोलता हूँ कि भाई हर प्लैनेट आपकी लाइफ में 30 दिन में से, अगर 9 प्लैनेट हम डिवाइड करते हैं 30 दिन में से, हर प्लैनेट करीब 2-3 दिन आता है, 1-2 दिन आता है. अगर सारे ही प्लैनेट गड़बड़ होंगे तो आपका पूरा मंथ हो सकता है गड़बड़ हो. सपोज करो आपके 2 ही प्लैनेट पे स्पाउस एनर्जी है, तो आप 2-4 दिन 5 दिन स्पाउस के साथ रहे और उसके बाद फिर अपने काम में बिजी रह गए. ठीक है, तो ऐसे कहने का मतलब ये है कि आपको देखना पड़ेगा कितनी आपकी स्पाउस एनर्जी है, कैसा रिलेशनशिप है, कैसे आप एक दूसरे से सपोर्ट कर सकते हैं, आपका चंद्रमा कैसा है, आपका वीनस कैसा है, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, ओवरऑल टोटल एनर्जी. तब आप बता सकते हैं कि हाँ, ये जो है ये अच्छा है, ये आगे अच्छा चलेगा, या यहाँ पर डिफिकल्ट टाइम है तो उसकी रेमेडी कर लें. और बिल्कुल भी लाइफ तो एक स्ट्रेट लाइन होती नहीं, अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहते हैं और सबको वो मैनेज करने पड़ते हैं. सो हाउ planets related to the human body and do they really have an impact on? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखिए, प्लैनेट्स का ह्यूमन बॉडी में बहुत ही गहरा संबंध है. देखिए, चंद्रमा का सीधा प्रभाव आपके मन पे पड़ता है. ठीक है, आप देखते होंगे कि पूर्णिमा के दिन भी समुद्र का उफान अलग लेवल पे होता है, स्पेशली फॉर लेडीज. या स्पेशली फॉर लेडीज, एंड बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि औरतों का चंद्रमा इमोशन से बहुत कनेक्ट है और इमोशंस का मून से बहुत कनेक्ट है. तो अगर हम देखें कि प्लैनेट्स कहाँ हैं, यूनिवर्स में तो है, पर शरीर में कहाँ है? मालूम आपको, शरीर में भी प्लैनेट. शास्त्रों में क्या आ गया, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे. जो ब्रह्मांड में है वो शरीर में है, और सारे प्लैनेट्स का आपके चक्रास पे हैं. सो मूलाधारा चक्र से सहस्रार चक्र या आज्ञा चक्र तक सारे प्लैनेट हैं. जैसे मूलाधारा चक्र पे जो एनर्जी है वो शनि की एनर्जी है, उसके ऊपर स्वादिष्ठान चक्र है, उस पर जुपिटर की एनर्जी है, उसके ऊपर मणिपुर चक्र है, उस पर मंगल ग्रह की एनर्जी है, उसके ऊपर अनहत है, उसमें शुक्र की एनर्जी है, उसके ऊपर विशुद्धि चक्र है, उस पर बुध की एनर्जी है, और सन एंड मून जो है आपके आज्ञा चक्र पे. तो अगर आप इस शरीर को अलाइन करते हैं, इसके लिए कुछ प्रयास करते हैं, आपके प्लैनेट्स भी अलाइन हो जाते हैं. आपके चक्रा जैसे अलाइन हुए तो जो भी ब्लॉक है आपके शरीर में, व्याधि कब आती है? जब कोई भी आपका चक्रा इनएक्टिव या ब्लॉक्ड हो, तभी प्रॉब्लम आती है. या इमोशनल हो गई, फिजिकल हो गई, तो आपके चक्रों को ज़रूर देखना बहुत ज़रूरी है. और अगर कहीं कोई शरीर में व्याधि है तो उस प्लैनेट के उपाय करने से वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाता है. देखिए, कर्मों के विधान को तो भगवान भी नहीं चेंज कर पाए. ठीक है, जो कर्म में लिखा है वो आता है, पर उपायों से क्या होता है, आप उसको काफ़ी कम कर पाते हैं. तो जिसे कहा गया है कि अगर आपकी, जैसे हम बात करते हैं फ्री विल एंड डेस्टिनी की, अगर हम बात करते हैं, देखिए आपकी, जैसा गुरुदेव कहते हैं कि आपकी हाइट जो है ना आपकी डेस्टिनी है,
आपका वेट आपका फ्री विल है। तो ज्योतिष में दोनों ही चलती हैं। जी जी तो आप कर्मा की बात करें थे और आपने डेस्टिनी भी बोला, क्या हाँ। ये रिलेटेड है? क्या इज इट कर्मा वर्सेस डेस्टिनी एंड डू दे इम्पैक्ट योर फ्यूचर? देखिए, कर्मा और डेस्टिनी दोनों का ही अपना रोल है। अब आप किस घर में पैदा हुए, किस एनवायरनमेंट में रहे, ये तो जो लिखा है वो लिखा है, पर आप अपने मेहनत से उसको चेंज कर सकते हैं। आप आगे बढ़ सकते हैं, आगे आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकते हैं, आप अपनी एजुकेशन, अपनी जॉब, अपना करियर बढ़ा कर सकते हैं। तो कर्मा और डेस्टिनी दोनों का ही रोल है। हाँ, आपकी डेस्टिनी में जो प्रारब्ध में लिखा है, वॉट एवर इज रिटन इन द डेस्टिनी, वो मिलेगा, वो मिलेगा, चाहे वो दुख है सुख है। पर अगर दुख है तो उसको कैसे कम किया जाए, अवेयरनेस से। और अवेयरनेस कैसे आती है? साधना से, ध्यान से। ठीक है, तो कर्मा का अपना रोल है। मुझे इतना मालूम है, मैं गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को, वो मेरे गुरु हैं, मेरे गाइड हैं, और मैंने ये देखा है, ये समझा है कि अगर आपकी पत्री भी बहुत ख़राब है तो आप राइटफुल कर्मा से, अपने संकल्प से, अपनी मेहनत से काफ़ी चीज़ों को चेंज कर पाते। लॉट ऑफ होप फॉर हस्बैंड्स हु आर फीलिंग ट्रैप्ड। काफ़ी सारे लोग ना एस्ट्रोलॉजी में मानते नहीं है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे एक फ्रेंड थे जो नेवी में कैप्टन थे, तो कहते थे कि हम ना स्टार्स को ट्रैक करते हैं अपनी शिप्स को चलाने के लिए। मैप तो होता नहीं है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप छोटा सा डिग्री का भी एरर करते हो कैलकुलेशन में, तो आपकी शिप नॉर्थ की जगह साउथ भी जा सकती है। बहुत सही, बिल्कुल। तो लोग बोलते हैं यार कैसे मान सकते हैं, इट्स नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, व्हाट इफ माय टाइम ऑफ बर्थ वाज 10 मिनट्स ऑफ। लोग कहते आप बहुत क्या बढ़िया, करें? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, नाड़ी ज्योतिष ना, ये पूरी दुनिया में नोन है प्रिसीजन ऑफ टाइम के लिए। मैं संजीव वंश को राष्ट्रों पे ट्वीट करता हूँ, और मैंने हज़ारों भविष्यवाणी की है, कई 100 भविष्यवाणी की है। अगर उसमें एरर रेट दिखाया जाए तो 0.01 के अंदर आएगा। But is this contingent to the right time of birth also? How do you get it ये exact? मैं उसी पे आ रहा था। तो वो एक तरीका है जो मैं प्रश्ना से करता हूँ या किसी का चार्ट देख के करता हूँ। पर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में क्योंकि कैलकुलेशन इतनी डीप है, तो अगर टाइम ऑफ बर्थ सही नहीं हुआ तो मिसकैलकुलेट कर सकता है, मिसकैलकुलेट हो सकती है इवेंट। तो सबसे पहले मैं आई टीच इन मोर देन 70 कंट्रीज, आई हैव थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग एस्ट्रोलॉजी। सबसे पहले मैं उनको सिखाता हूँ, फर्स्ट चेक बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग और डूइंग द प्रेडिक्शन, फर्स्ट चेक कि टाइम ऑफ बर्थ सही है कि नहीं है। क्योंकि जो आपकी लाइफ में हो रहा है ना, वो आपके बर्थ चार्ट में दिखेगा, और जो आपके बर्थ चार्ट में है वो आपकी लाइफ में दिखेगा 200%। इतना ज़्यादा प्रिसीजन, मतलब सरप्राइज, समटाइम्स वी ऑल्सो गेट सरप्राइज इनिशियल डेज, बट नाउ वी नो it happens exactly. So I teach them how to check the time. If your time is 10 minutes or 5 minutes or 2 minutes, sometimes it's here and there, you can miss some of the very important calculations. And here also we use degrees, and the calculation is so deep that within 5 minutes so many things and predictions can change. So first we say what is going on right now. We verify the time with past 6 months or 1 year or maybe few major events in the life, because that has to be there. That's why the event has happened. So verify the time, and then we then we go on prediction. And that's why the Nadi astrology prediction is 90, 95, 97% accurate. And in Prashna, which is the technology, I usually just say technology because these are technology. My background is software engineer, management professional. So I use all this technology. The technology which the Prashna uses, it's like 99% accuracy, I tell you. Because I have predicting for so many years, maybe I can also do mistakes. Sometimes 2 or 3 times I can 2-3% error rate is there everywhere. Because if your mind is not aligned, if your sadhana, a lot of things astrologer has to perform to get to that intuition. Because perfect prediction is not just calculation. If you are going 90, 95, 99%, then it is about your intuition also and calculation also. And here calculation is very deep, very vast. बहुत ही डीप कैलकुलेशन होती है यहाँ पर। Okay. तो ऐसे नहीं है कि जस्ट आपने सब प्लैनेट देखा, इस हाउस में बैठा और प्रेडिक्शन कर दी, नहीं। आपको नक्षत्र को देखना है, नक्षत्र के लॉर्ड को देखना है, फिर आपकी इंट्यूशन भी बहुत शार्प होनी चाहिए। यू हैव टू बी हॉलो एंड एम्प्टी टू रियली हेल्प द पर्सन हु हैज कम टू यू। So you were a professional. Can you tell us how you got into astrology? What has your journey been like? See, my father was also a very good astrologer and a very famous homeopathic doctor. So he used to see, palm, and sometimes calculate numbers, sometimes see patri.
and whatever he tells, it's like 200% accurate. And I was like fascinated since my childhood. And I remember I have done one prediction by just seeing hand and thing at the age of maybe 8 or 9 years. And that became very accurate, and I was shocked. I thought, "No, this is not something which is for me. I can't do this. Everybody knows the future. It's very difficult." So I was literally, afraid of doing astrology, in the initial childhood. Then slowly and gradually as the time grows, so inspiration of my father, then there are so many books at the home I used to see and refer. Then slowly in school days, then college days, I used to see so it keeps on going, college, and then profession started, and I was seeing the chart. But to become this, I have never imagined, actually. I'm a software engineer. I was working with, top MNCs at the key positions, management done management also. So you didn't see astrology as a profession at that time? I have never imagined that I can be teaching astrology across the world. It is I would truly say, if I can say that, it is an inspiration from my Gurudev, Shri Shri Ravi Shankar ji, that I came into this teaching and predicting, or, Jyotish. I would say everything is because of him only. Whatever I'm doing, whatever stage I am in, or whatever my prediction goes, I dedicate or surrender everything to him, because he's an inspiration. My father was an inspiration. I think, every true guru or enlightened saint know what your capability is, and when you go to the enlightened saint, he improves, or he finds out your best of the qualities for the betterment of society and the well-being of the world. So what is the last piece of advice you would like to share with the viewers? Yeah, I would say this. There are 3 kinds of energies which brings miseries in the life: 6, 8 and 12. 6 is disease, death and litigation. 8 is obstacle, insult, misfortune. 12 is losses, expenditure, outflow of money. 6 is seva also, serving and helping people also. तो आप 6, 8, 12 मैंने जैसे बोला कि 6 डिजीज डेट लिटिगेशन होता है, 8 ऑब्स्टिकल होता है, 12 लॉसेस एक्सपेंडिचर आउटफ्लो, 6 सेवा भी होता है, किसी दूसरों की हेल्प करो. अब सेवा क्या, तन मन धन कैसे भी हो सकती है सेवा. आप शरीर से करिए, आप मन से किसी को 4 बातें अच्छी बोल दीजिए, उसका मन अपलिफ्ट कर दीजिए, वो भी सेवा है. और धन से भाई किसी अच्छे काम में, जैसे एजुकेशन वाला कोई काम है, कोई भी काम है जिसमें थोड़े सेवा अपनी कमाई का कुछ पैसा दीजिए, वो भी सेवा है. फिर मैं बोलता हूँ ऑब्स्टिकल या तो योगा मैट पे झेल लो या अपनी लाइफ में झेल लो. ठीक है, तो बेटर यू हैव टू चैनलाइज. सी एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज वाइब्रेशन. यू हैव टू चैनलाइज द एनर्जी. थिंग्स विल कम टू यू, बट इफ यू चैनलाइज इन द राइट वे, तो मैं बोलता हूँ योगा, प्राणायाम, पद्म साधना करोगे तो ऑब्स्टिकल्स कम होंगे. फिर 12th हाउस इज लॉसेज, एक्सपेंडिचर, आउटफ्लो ऑफ मनी. अगर लॉस ज़्यादा है, हेल्थ लॉस, वेल्थ लॉस, मन का लॉस, तन का लॉस, रिलेशनशिप का लॉस, तो थोड़ा दान करना ज़रूरी है. Spiritual course like silence course, I've done art of living course. I'm an art of living teacher also. तो मैं उसको जानता हूँ. बाकी आपको जहाँ भी आप कनेक्टेड है, वहाँ नहीं तो आर्ट ऑफ लिविंग तो बहुत ही अच्छी वो है, वहाँ पर बहुत अच्छे कोर्सेज सिखाते हैं. तो वहाँ साइलेंस कोर्स 12th हाउस में बोलता हूँ कि साइलेंस कोर्स करो, आप ट्रांसफॉर्मेशन 4 दिन में देख लेते हो अपने अंदर. इतना पावरफुल है. देखिए, कर्म का सीधा सिद्धांत है, कर्म जो है 2 ही चीज़ से कटता है. मैं कहता हूँ दुनिया में 2 ही रेमेडीज़ हैं. देखो, वैसे बहुत सारी रेमेडीज़ मिलेंगी, इधर पीपल में दिया जला दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है, श्रद्धा है, मैं उसको कुछ बोलता नहीं. पर देखिए, कर्मों को सिर्फ छोटी कोई ऐसी चीज़ करने से कर्म नहीं काटे जा सकते, कि जो लोग काट रहे हैं, कर रहे हैं, वो भी दुख भोग ही रहे हैं अभी भी. ठीक है, तो क्या कर्मों को काटने की 2 ही तरीके हैं यूनिवर्स. एक गुरु की दया के 2 रास्ते हैं. एक उनका दर्शन, कोई भी आप जिनको भी मानते हैं, उनकी दया मतलब दर्शन से. दया कैसे मिलती है, ग्रेस कैसे मिलते हैं, ग्रेस बाय सीइंग, बाय मीटिंग हिम. ओके. एंड दूसरा गुरु भक्ति मैं कहता हूँ भाई जो उन्होंने बोला उसको फॉलो करो, तो तुम्हारा कल्याण अपने आप ही हो जाए. एक तो ये. दूसरा मैं बोलता हूँ डीप लॉन्ग मेडिटेशन. अब मेडिटेशन करने के अलग तरीके के साइलेंस कोर्स है. बाकी जब कोई आता है, हम बताते हैं उसको कि भाई क्या करो, क्या आपका ग्रह गड़बड़ है, तो कैसे आप करोगे तो आपका और अच्छा हो सकता है. तो फिर मैं बोलता हूँ भाई देखो, जैसे लाइफ में आजकल बहुत लोग लग्जरी कंफर्ट के पीछे जाते हैं. मैं कहता हूँ कि भाई आप अपनी लाइफ में अपनी पत्नी, अपनी माता, अपनी स्त्री शक्ति को खुश रखिए. हस्बैंड से बोलता हूँ कि अगर आप अपनी स्त्री शक्ति को खुश रखिएगा, आप मंदिर में जाए, देवी की पूजा करें और वाइफ आपकी रूठी हुई है, कुछ नहीं होने वाला. ठीक है, वाइफ आपकी खुश है, आपकी घर में स्त्री शक्ति खुश है, तो आपका वीनस ग्रह बहुत अच्छा हो जाएगा. और वीनस ग्रह जब अच्छा होता है तो आपकी लाइफ में आपको कंफर्ट, लग्जरी सब आता है, वेल्थ सब आता है. और जैसा गुरुदेव कहते हैं, मालिक कहते हैं कि भाई औरत को चाहिए कि पति के इमोशंस को हर्ट ना करे, पति के
औरत को चाहिए कि पति के ईगो को हर्ट ना करे, और पति को चाहिए कि औरत के इमोशंस को हर्ट ना करे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपका रिलेशनशिप अच्छा हो। पति शॉपिंग करने जाती है, जाने दीजिए, कुछ अगर बोल भी रही है तो पुरुषों में क्या सुनने की आदत कम होती है, सुनिए, पचाइए। देखिए हर चीज़ लिखी हुई है, कितना आपको बोलना है, कितना आपको सुनना है, कितना आपको दुख झेलना है, सब लिखा हुआ है, ठीक है। इतना परफेक्ट कैलकुलेशन, सी इट्स अ परफेक्ट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मूवी है, बनी हुई है। The Matrix. अब ये पूरा दुनिया जो है ना, ये पूरी मैट्रिक्स की तरह है, और उसमें हर चीज़ नपी तुली है। आप कितनी सांसें लेंगी ना, वो भी नपा तुला है, पर उसका मेजरमेंट करने के लिए लोग आते नहीं। हमसे कई लोग पूछते हैं आयु कितनी है, हम बोलते हैं भाई जितने ऊपर वाले ने लिखी, पर एक्चुअली आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। पर ये हम ज्योतिष में ना बताते हैं, ना बोलते हैं, ना डिस्कस करते हैं, बिकॉज कुछ चीज़ें सीक्रेट होनी चाहिए, जन्म और मृत्यु। बाकी लाइफ की चीज़ के लिए हम गाइड करते हैं। तो मैं कहूँगा 6-8-12 सेवा साधना, कुछ स्पिरिचुअल कोर्स करिए, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा ध्यान रोज करिए, और मैं कहूँगा 5 ही मिनट का आप ध्यान करिए। आपका ध्यान करना नहीं लगता, 5 मिनट का ध्यान, 10 मिनट का ध्यान सुबह शाम करिए, देखिए आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा योगा प्राणायाम, थोड़ा ध्यान आपकी लाइफ को बहुत चेंज कर सकता है। पर जो भी करिए, देखिए कोई भी चीज़ सिद्ध कब होती है, जब आप उसको रेगुलर करते हैं। ये नहीं 4 दिन क्या छोड़ दी, अगर आप 8 हफ्ते कोई भी चीज़ करते हैं, आपको वो हैबिट बन जाती है, और फिर धीरे धीरे कुछ सालों में वो चीज़ सिद्ध हो जाती है। सिद्ध हो जाती है तो जो चाहिए वो मिल जाता है। हमारे तो कई सारे हैं दुनिया में, सब फीडबैक देते हैं कि अब तो ऐसा हो रहा है। ऑब्वियसली ग्रेस से होता है ये सब चीज़ें, कोई मैं कुछ नहीं, कोई जादूगर नहीं हूँ, ना मैं कोई ऐसा हूँ, पर ये ग्रेस से होता है। और आप जब किसी चीज़ को लगातार हमेशा करते हैं तो सिद्ध हो जाता है। अब जितने भी आज सुबह संदीप पाटिल जी ने बताया, जो भाई प्रैक्टिस, फोकस, अटेंशन, राइट, तो जब आप एक ही चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं वो सिद्ध हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि सब लोग ध्यान ज़रूर करें। एस्ट्रोलॉजी मेरा एक मोटो है, मेरा विजन है एवरी होम वन एस्ट्रोलॉजर एंड विजडम। तो हर किसी को एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए, चाहे अपने लिए सीखे, चाहे एज ए प्रोफेशन सीखे, चाहे विजडम के लिए सीखे। आई ऑल्सो से वन बिग वर्ड कि एस्ट्रोलॉजी इज ए बिग पिलर टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट, क्योंकि आपको इतना विजडम दे देता है ना, किस टाइम के, अगर समय का ज्ञान है ना आपको, तो आप किंग है इस दुनिया में, किंग क्वीन जो भी कह लीजिए। समय का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने जी। Thank you so much, Dr. Srivastava, speaking with me.